Now I'll just give you a brief idea about free trade agreements. FTAs होते क्या हैं? So free trade agreement is a mechanism under which countries they promote trade. Trade promote करते हैं आप, and you dismantle the barriers to trade. So technically barriers to trade क्या होते हैं? There are two barriers of trade. One is a tax barrier, जिसको हम tariff barrier कहते हैं, wherein a country imposes high tax on imports. कोई भी import होगा उस पे हम duty लगाते हैं. So there is a tax barrier, tariff barrier. The second kind of barrier is the non-tariff barrier. Non-tariff barrier मतलब if I put a barrier like let's say heavy rules and regulation on the entry of foreign item to India. Similarly, we can impose let's say हम Indian items को promote करें at the cost of foreign items. We are maybe we have a policy wherein we put quota control or quality control on foreign item. Indian item के लिए quota quality नहीं होगा, उनके लिए रहेगा. So there is a discriminatory practice between Indian items and foreign items. तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए. इसके अलावा भी बहुत सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं. द प्रॉब्लम विद द बैरियर्स आर दैट दे आर एंटी ट्रेड इन नेचर, तो दे हैव टू बी रिमूव्ड. सो कंट्रीज आपस में ट्रेड प्रमोट करने के लिए वो बैरियर्स टू ट्रेड हटाने की बात करती हैं. Now free trade agreement is one step ahead where countries come together and make an agreement among themselves कि भी हम ये barriers to trade हटा रहे हैं. So this free trade agreement का concept 1991 के बाद start हुआ, wherein we started negotiating with countries and India adopted a model कि भी हमको economic integration करना है worldwide. Now free trade agreement में हम लोग trade agreements करेंगे every country के साथ और maybe group के साथ, and thereby will remove the barriers to trade. For example 2003 में हमने ASEAN एक group है 10 countries का, Association of Southeast Asian Nations, उनके साथ FTA किया. Similarly we had FTA with South Korea, Japan, और भी हमने इंडिविजुअल कंट्री, अभी रिसेंटली हमने यूएई के साथ जो है अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, उसको बोलते हैं CECA, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट. सो व्हेन वी ट्राई टू सी, सो इंडिया हैज साइंड 13 FTAs विद ईदर कंट्रीज और ग्रुप्स, और उसमें देयर आर सर्टेन FTAs जो नेगोशिएशन में चल रहे हैं. अब सवाल है कि FTAs के बेनिफिट्स क्या हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ FTAs. सो सबसे पहला, ओके, इट एलिमिनेट्स बैरियर्स टू ट्रेड. Okay, and there is enhanced economic cooperation, enhanced economic cooperation, boost to exports, or you can say trade. India has 13 FTAs. Okay, India, UAE being latest. ठीक है. थोड़ा सा इसके लेवल पे समझते हैं. Now how does this cooperation increases, और इसके challenges क्या हैं, ये सब नोट्स में नहीं दे रखा है. नोट्स जो है आपका that is cut to cut, but I just want to discuss the backgrounder of that so that it makes more sense, because ये issue बार बार आएगा and in some or the other form. Online students, everybody, are we on the same page? Do let me know if anybody has any concern. Right. इसके challenges क्या हैं और इसके potential benefits क्या हैं? Benefits we have already discussed. Eliminates barriers to trade. आपका enhanced economic cooperation होता है, आपके exports को boost मिलता है, and naturally if the export boost होता है तो it creates what? Job creation, opportunities. But ये इतना simple नहीं जितना लग रहा है, because we have own challenges that we see in this area. Competition is a virtue. ये कह रहे हैं सर कट थ्रोट कंपटीशन होगा. नेचुरली यही तो प्रॉब्लम है. व्हेन वी ओपन द मार्केट फॉर द ट्रेड, तो आपके प्लेयर्स आर एक्सपोज टू द फॉरेन कंपटीशन. नाउ यू हैव टू बी रेडी टू मीट देम.
अगर आप फॉरेन प्लेयर के साथ कॉम्पीट करना चाहते हैं तो आपके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। अगर नहीं कर पाएंगे सो यू आर रिप्लेस्ड बाय देम। दैट इज वन ऑफ द चैलेंजेस। सो अब ये है कि उसमें गवर्नमेंट धीरे धीरे अलाउ करती है इन दो सेक्टर्स वे दे फील कि इंडिया इज नॉट रेडी, उन सेक्टर्स को पहले अलाउ करती है। अब इस पर आते हैं, लेट मी कंप्लीट दिस टॉपिक, आई विल टेक 15-20 मिनट्स टू गिव यू द एंटायर आइडिया। नाउ कमिंग टू द एफटीएस, एफटीए के कई तरीके होते हैं। द फर्स्ट लेवल ऑफ एफटीए इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अब एफटीए कहां कहां हो सकता है? एफटीए कैन हैपन इन द एरिया ऑफ गुड्स, it can happen in the area of services, it can happen in the areas of investment, ठीक है, प्लस क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, ये वैसे भी मैं ट्रेड में डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, बट एक थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पार्ट। सब एवरीबडी ऑन द सेम पेज, सबको समझ में आ रहा है? क्लियर? अभी तक समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, समझते हैं। द टॉपिक इज ट्रेड अग्रीमेंट, ट्रेड का अग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज, राइट? ट्रेड कहां कहां हो सकता है? सुन लो पहले, आई विल गिव यू टाइम टू मेक नोट्स, सुन लो पहले। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर साइनिंग ट्रेड अग्रीमेंट विद अदर कंट्री। ट्रेड कहां कहां हो सकता है? ट्रेड मतलब अपना सामान उनको बेचना, उनका सामान हम खरीदना, दैट इज ट्रेड। एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैन बी वन एरिया। तो वो ट्रेड कहां हो सकता है? गुड्स के एरिया में हो सकता है। इफ आई ओपन माई मार्केट फॉर माई गुड्स टू द फॉरेन मार्केट एंड इंडियन मार्केट फॉर फॉरेन गुड्स, ठीक है। जैसे अभी आप देखो आसपास, व्हेन यू गो टू द मॉल यू फाइंड द मार्केट इज फ्लड विद फॉरेन आइटम्स। आज से 10 साल पहले सिर्फ कैडबरी और चॉकलेट दिखती थी, अभी आप जाओगे तो मार्केट में 50 चॉकलेट दिखती हैं। Naturally you rely more on Cadbury because you are able to identify with that brand better, but foreign options भी हैं, am I right? Right, because the market is open for foreign companies to come and sell in India. So एक goods में हो गया। दूसरा हो गया services, we go beyond goods and we हम की cross border service को भी export करेंगे। For example Indian IT services serving other countries, या उनकी country हमारे country में आ जाती है। फॉरेन कंपनी का कोई सर्विस कंपनी, लेट्स से इंश्योरेंस कंपनी इंडिया के में आके बिजनेस करता है। जैसे आपने मैक्स बूपा का नाम सुना है, तो मैक्स बूपा इज अ फॉरेन इन्वेस्टर, इट इज फ्रॉम यूके। देन सो यू हैव टाटा एआईए, राइट? एआईए इज अ फॉरेन कंपनी। तो वो क्रॉस बॉर्डर हम सर्विस का मूवमेंट करेंगे या जो भी होगा, उसको तरीके होते हैं, मल्टीपल तरीके होते हैं। सो वी अलाउ द इंडियन मार्केट फॉर सर्विसेज एंड फॉरेन कंट्री ऑल्सो अलाउज देयर मार्केट फॉर इंडियन सर्विसेज, बोथ वेज। अब इसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट। द थर्ड लेवल इज इन्वेस्टमेंट। वी अलाउ इन्वेस्टमेंट टू मूव फ्रॉम योर कंट्री टू माई कंट्री एंड फ्रॉम माई कंट्री टू योर कंट्री। अब होता क्या कि ट्रेड ऑटोमेटिकली बाई प्रोसेस ट्रेड तो हमेशा होता है, बट वी स्पेसिफिकली क्रिएट अग्रीमेंट टू प्रमोट ट्रेड विद सर्टेन कंट्री और ग्रुप, वो ट्रेड अग्रीमेंट हो गया। और उसमें हम लोग जो ट्रेड अग्रीमेंट करते हैं तो हम पूरी लिस्ट क्रिएट करते हैं कि भाई हम इस एरिया में आपको मार्केट ओपन कर रहे हैं, इस एरिया में मार्केट ओपन नहीं कर रहे हैं, बेस्ड ऑन द पोटेंशियल बेनिफिट दैट वी हैव। अब ये जो ट्रेड अग्रीमेंट होता है, इसमें पहला होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। हम कुछ प्रेफर करते हैं आइटम को कि भाई यही ट्रेड करेंगे, एंड दैट टू विद लिमिटेड अप्रोच। देयर आर सर्टेन कवीट्स व्हिच आर देयर।
हम पूरा मार्केट ओपन नहीं करेंगे। जैसा इन्होंने कहा कि सर अगर मार्केट ओपन कर देंगे तो फॉरेन प्लेयर इंडिया में आके इंडियन प्लेयर को कंपटीशन देगा, एंड मे बी इफ दैट कंपनी इज बिगर एंड बेटर दे माइट ईट द इंडियन कंपनीज। सही बात है ना, ये संभव हम देखते हैं। आप फॉरेन आज भी देखो, बहुत सारे ऑप्शंस आर देयर वेयर यू विल फाइंड दैट ओनली ऑप्शन इन इंडिया इज एन एमएनसी। वो इंडियन है ही नहीं, इंडियन वर्जन लिमिटेड है। आई एम टॉकिंग अबाउट पैन इंडिया। अब कोई स्पेसिफिक लोकल ग्रुप है जो आपको कोई जूस पिला रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, बट पैन इंडिया कौन सा ग्रुप पॉपुलर है? अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें, पेप्सी एंड कोक, दैट्स ऑल। यानी इंडियन प्लेयर कोई है ही नहीं ऑल्टरनेटिवली, बिकॉज वो लोग आए, उन्होंने इंडियन प्लेयर को खरीद लिया या बंद कर दिया। सो दैट इज अ प्रॉब्लम। दूसरा क्या है, जहां हम स्ट्रांग नहीं है, वेयर द एरियाज वेयर वी आर नॉट स्ट्रांग, फॉरेन प्लेयर कैन कम एंड टेक एडवांटेज ऑफ दैट। सो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम वी मेक अ लिस्ट ऑफ एरियाज जहां प्रेफर करते हैं, नॉट ऑल एरिया, और उसमें भी हम ओपन नहीं होते हैं। एक होता है आप पूरा ट्रेड बैरियर हटा दीजिए, रिमूव ऑल टैक्सेस, ऑल बैरियर्स, ऑल एनीथिंग, यू ट्रीट इंडियन एंड फॉरेन गुड एज सेम। एक तरीका ये होता है, बट वी आर वेरी कॉशियस बिकॉज वी हैव टू सी द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन मार्केट्स ऑल्सो। दूसरा हो गया कॉम्प्रहेंसिव। आप सेकंड लेवल पे जा रहे हो, यू आर मेकिंग कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट, यानी आपके जो एफटीओज हैं वो एक कॉपरेशन अप्रोच में है, गुड्स भी है, सर्विसेज भी है, और मे बी सिर्फ गुड्स है। सीए इसको बोलेंगे, सीए कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सीए कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीएपीए। सो सीए में गुड्स हो सकता है, सर्विस हो सकता है, या दोनों हो सकता है। इट इज द ट्रेड एग्रीमेंट्स आर वेरी स्पेसिफिक टू द ग्रुप एंड कंट्री। यानी ऐसा नहीं कि ट्रेड एग्रीमेंट सबके साथ सिमिलर होगा, हर कंट्री के साथ हमारे टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन होंगे। सो वी आर फ्री टू डिसाइड द ट्रेड एग्रीमेंट विद देम एंड वाइस वर्सा। तो यानी हर ट्रेड एग्रीमेंट अलग अलग है। इट इज नॉट ऑल द ट्रेड एग्रीमेंट दैट वी सी। ये जो इंडिया के साथ 13 एफटीएज हैं, दे आर ऑल डिफरेंट इन देयर ओन रिस्पेक्ट। ठीक है। उसके बाद होता है कोऑपरेशन है, विच इज रिलेटिवली ऑन द ऑन ओपनिंग साइड, बट अगर पार्टनरशिप होगा तो हम नेक्स्ट लेवल चले जाएंगे। दैट मीन्स द ट्रेड एग्रीमेंट इज मोर वाइडर एंड इट इज मोर इंक्लूसिव इन नेचर। ठीक है। तो उसमें हो सकता है गुड्स भी हो, सर्विसेज भी हो, इन्वेस्टमेंट भी हो। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एफटीएस विच इज सीएपीए। जैसे हमारा सीएपीए जापान के साथ है, वी हैव अ सीएपीए विद साउथ कोरिया। तो अब ट्रेड अग्रीमेंट जो है सर हर कंट्री के साथ अलग अलग हमारे हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड अग्रीमेंट। अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा, हमने अपना मार्केट ओपन कर दिया फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, हमने इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया, बोथ द प्लेयर्स ओपन दैट। अब नेक्स्ट लेवल क्या है, यू अलाउ द क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी लोग भी मूव कर पाए। अभी तक तो गुड्स एंड सर्विस मूव कर रहा है, अब लोग भी मूव कर पाए। उसके अलावा और क्या होगा, यू अलाउ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू मूव अक्रॉस बाउंड्री, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हो। तो फिर वो कस्टम यूनियन हो जाता है, फिर मॉनेटरी यूनियन। मॉनेटरी यूनियन मतलब मॉनेटरी पॉलिसी भी सिमिलर हो जाती है। अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मॉनेटरी यूनियन इज यूरोपियन यूनियन। एक करेंसी है, बहुत सारी कंट्रीज में चलती है। ओके, सो बट दैट इज मे बी वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन, जो पॉसिबल नहीं है। तो ट्रेड अग्रीमेंट्स आर पिलर ऑन विच द ग्लोबल ट्रेड इज प्रमोटेड। और ट्रेड अग्रीमेंट हम लोग कंट्रीज के साथ करते हैं और उसका बेनिफिट हम लेना चाहते हैं, बट इट कुड बी अदर वे ऑल्सो, द अदर कंट्रीज कैन ऑल्सो बेनिफिट। अब इंडिया के एफटीए के बेनिफिट से चैलेंजेस क्या है वो हम अभी देखेंगे। फर्स्ट यू नोट इट डाउन। हाँ, मैं उनकी कंट्री में लैंड परचेज कर सकता हूँ और वो मेरी कंट्री में लैंड परचेज कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहीं लैंड खरीदोगे ना। इसमें और भी है, विल डू दैट इन डब्ल्यूटीओ, जब पढ़ेंगे ट्रेड में पढ़ेंगे, सो विल गो टू नेक्स्ट लेवल। ओके, वेरी वैलिड क्वेश्चन। वन हैंड, चलिए लिख लीजिए, उसको डिस्कस करते हैं।
वो मेरे चैलेंजेस में आने वाला है, वो पॉइंट जो आप पॉइंट मेंशन कर रहे हो। ठीक है, शिवम क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ, गॉट इट राइट। तो ट्रेड में हमारे एग्रीमेंट हो रहे हैं जिससे हम ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। अब गोइंग फॉरवर्ड एट नेक्स्ट लेवल, इंडिया के एफटीएस जो हो रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं। फ्री ट्रेड मतलब ट्रेड एग्रीमेंट विच अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इवेंचुअली पीपल, लेबर, कैपिटल, एवरीथिंग, गोइंग ऑन स्टेप बाय स्टेप। तो जब एफटीए इंडिया के बाहर कंट्रीज साथ हो रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है? वेयर इज द प्रॉब्लम? मल्टीपल प्रॉब्लम है। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट वी हैव नॉट सीन द बेनिफिट्स ऑफ एफटीए विच आर हेल्पिंग द इंडिया टू ग्रो। अ वेरी गुड एग्जांपल इज इंडियन एशियन। 2003 में इंडिया और एशियन के बीच एफटीए हुआ, बट इफ यू सी द ट्रेड, इट इज वन साइडेड। एशियन कंट्रीज में के कंट्रीज को फायदा मिल रहा है, बट वी आर नॉट एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट। उसका रीजन क्या है? कि भी वो दे आर वेरी गुड मैन्युफैक्चरर्स। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्ट्रांग या डेवलप नहीं हो पाई है, बट देयर इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी गुड। फॉर एग्जांपल मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर तो मोर सर्विस है, इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्रीज है, फिलीपींस, वी आर नॉट एबल टू कॉम्पीट अगेंस्ट देम। तो ट्रेड वन वे होगा भाई, हम अपना सामान नहीं बेच पाएंगे लेकिन वो सामान बेच पाएंगे, बिकॉज आवर आइटम कैन नॉट कॉम्पीट देम। एक दूसरा, इंडिया इज गुड इन सर्विसेज। इंडिया वर्ल्ड में सर्विसेज में स्ट्रांग है। इंडिया सर्विसेज में वर्ल्ड वाइड सबसे वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट है, आई वुड से स्ट्रांगेस्ट। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि वो लोग सर्विस का मार्केट ओपन नहीं करने दे रहे हैं। अ वेरी गुड एग्जांपल इज मलेशिया। मलेशिया कह रहा है भाई गुड्स में तो हम, अब पूरा पाम ऑयल जो इंपोर्ट हो रहा है वो बाहर से हो रहा है, मलेशिया से, इंडोनेशिया से हो रहा है। अब पाम ऑयल हम लोग खाने में खाते हैं, ऑलमोस्ट हर दूसरे खाने में पाम ऑयल आपको मिल जाएगा, बट दे आर नॉट ओपनिंग देयर आईटी इंडस्ट्री मार्केट बिकॉज इंडिया इज गुड इन देयर एरिया। उस पर नेगोशिएशन चल रहे हैं, या फिर मे बी दे हैव नॉट, बिकॉज एफटीए जब हमने एशियान से किया तो गुड्स के लिए किया, एंड मलेशिया इज अ पार्ट ऑफ एशियान। सर्विसेज में हम नेगोशिएट कर रहे हैं बट उसका रास्ता निकल नहीं रहा है। व्हाई? बिकॉज दे सी इंडिया एज अ पोटेंशियल थ्रेट टू देयर डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब उनको तो फायदा मिल रहा है बिकॉज हमने साइन कर लिया है। एक तरीका यह कि हम कहें कि भाई हम लेट्स रिवर्ट बैक, बट वो इंडिया को बैड लाइट में शो करेगा, अरे आप तो एंटी ट्रेड हो, और इंडिया को बिजनेस भी चाहिए, दूसरे का मार्केट भी चाहिए। सो व्हाट वी आर विटनेसिंग, द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी विटनेसिंग इज इम्बैलेंस इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं इसके करने में देयर इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी नहीं है फ्रॉम अ सिटीजंस पॉइंट ऑफ व्यू कि ऑन व्हाट बेसिस आप एफटीए साइन कर रहे हो। जब तक एफटीए साइन होता है एवरीथिंग इज सीक्रेटिव। जब एफटीए साइन हो जाता है देन इट कम्स टू नो कि भाई ये है एक्स वाई जेड। सो लॉट ऑफ पीपल, द ट्रेड एक्सपर्ट्स फील दैट इट इज ओपेक इन नेचर। तीसरा प्रॉब्लम ये है जो जैसा इन्होंने कहा, हम लोग नाउ ड्यूरिंग कोविड 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड आत्मनिर्भर भारत 1.0 फिर 2.0। तो आत्मनिर्भर भारत मतलब वी वांट टू प्रमोट आवर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, we want to capitalize our demography, want to capitalize our democracy, we want to capitalize our inner strength, people, technology, जो भी हमारे पास है। Why should we import from outside if we have the domestic capability? और अगर नहीं है तो डेवलप करते हैं ना, we are not a small country. So अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि when we try to push that, तो हम लोग क्या करते हैं, we somewhere try to focus more on domestic manufacturing, और import को हम धीरे धीरे in a subtle way हम कोशिश करते हैं कि ना हो या कम हो। Now that is counterproductive to the idea of trade as per the partner country। कह रहे हैं अरे आप एक तरफ हमसे कह रहे हो ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ यू आर पुटिंग अ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी वेयर यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रेड। आप कह रहे हो कि हाँ भाई इंडियन प्लेयर को प्रमोट करते हैं, और आप पॉलिसी ऐसा लेके आते हो कि इंपोर्ट रुक रहा है, राइट? सो दैट इज वन एरिया वेयर दोज कंट्रीज आर फीलिंग। इंडिया कह रहा है भाई हम आत्मनिर्भर भारत में क्या गलत है, we are promoting our domestic manufacturing industry, there's nothing wrong in that। import policy में तो जो policy है वही है, but when we are promoting our domestic industry तो हम वो हमारा right भी है और हमारा objective भी है। वर्ल्ड की सारी कंट्रीज जो ग्रो की है उन्होंने किया है एक टाइम पे, आज हमारा मौका आया है। फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ इंडिया इज डूइंग वेल इन मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया अभी असेंबलिंग कर रहा है। एप्पल का फोन इंडिया में बन रहा है बट असेंबलिंग हो रही है, एंड लॉट ऑफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग, अरे कोर R&D तो हो नहीं रहा है, हार्डवेयर तो बन नहीं रहा है, सामान 10 जगह से लाया और असेंबल कर दिया, यही तो हो रहा है। वेल दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स। पहले आप असेंबलिंग करते हो, उसके बाद यू लर्न हाउ टू मेक इट एंड देन यू स्टार्ट मेकिंग इट। सो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो दैट इज अ रियलिटी। बट इंडिया चाहता है कि भी हम ग्लोबल सप्लाई चेन पे डिपेंडेंसी कम करें,
because we have seen a history where India has not benefited, especially during times of crisis. हम पूरा पूरा 100% मेडिसिन के लिए, मेडिकल सप्लाईज के लिए वी वर डिपेंड ऑन चाइना, एंड कोविड आ गया एंड सडनली वी वर जो आपके वो क्या बोलते हैं, हेजल सूट बोलते, क्या बोलते हैं उसको, हैजमेट सूट थे, वी डिड नॉट हैड हैजमेट सूट्स, वी डिड नॉट हैड मास्क, मास्क बनाना भी नहीं आता था हमें, मास्क का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था, एंड देन सडनली इंडिया वाज एबल टू डेवलप, और विद इन मैटर ऑफ 6 मंथ हम पूरे वर्ल्ड भर भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। कैपेबिलिटी तो थी लेकिन मौका नहीं दिया कभी, वी वर डिपेंडेंट। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट, बट वेस्ट को लगता है ये गड़बड़ है। तो एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम है कि देयर इज हाई डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट्स इवन टुडे, आज भी हमारा भारत का इंपोर्ट्स। आप एक खिलौने की दुकान में जाते हो, कहते हो कि भाई मुझे एक खिलौना चाहिए, आपने लिया, पीछे देखा मेड इन चाइना, नहीं नहीं दूसरा लाओ, दूसरा देखा मेड इन चाइना, आपने कहा नहीं दूसरा लाओ, लेके आया, फिर देखा मेड इन चाइना। अब मेड इन चाइना ही ऑप्शन है, मेड इन इंडिया का ऑप्शन ही नहीं है। व्हाई? बिकॉज देयर टॉय इंडस्ट्री इज मेकिंग टॉयज एट अ मच लोअर कॉस्ट देन व्हाट इंडियन कंपनीज आर डूइंग। तो इंडियन प्लेयर कॉम्पीट नहीं कर पाता है, तो गवर्नमेंट अब प्रमोट कर रही है, इंडियन टॉय इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, उनको इंसेंटिव दे रही है, इंडियन बल्क ड्रग इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है, उनको इंसेंटिवाइज कर रही है। सो देयर आर चैलेंजेस। ठीक है, नाउ लेट्स सी द चैलेंजेस। Okay, Abhinav, it'll share in a while, just hold on. ये .1 है, .5 यहाँ पे डालता हूँ। हम्म
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मल्टीपल है, मल्टीपल बॉडीज are involved, but it is mostly Ministry of Commerce. Now we'll come to the current. अब टॉपिक पे आते हैं, अभी तो बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे थे. Now ये पॉइंट्स क्लियर है सभी. एक पॉइंट इसमें रह गया विच आई वांट टू डिस्कस, दिस पॉइंट, प्रायोरिटी टू नॉन टैरिफ एरियाज. नाउ व्हेन यू ट्राई टू साइन टैरिफ विद अ कंट्री, हम टैरिफ जब बैरियर को हटाने की बात करते हैं, दैट इज वी ट्राई टू साइन अ ट्रेड एग्रीमेंट. तो वो कहते हैं अरे आपके यहाँ लेबर लॉ फॉलो नहीं होता है, मिनिमम वेजेस फॉलो नहीं होता है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स का कंसर्न एड्रेस नहीं होता है. सो वी से दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. यू वांट आइटम, राइट? आपको सामान चाहिए, हम उससे बात करते हैं. हाउ कैन वी कंपेयर इंडियन लेबर लॉ विद अमेरिकन लेबर लॉ? हाउ कैन वी कंपेयर इमिशन नॉर्म्स इन अमेरिका विद इंडियन इमिशन नॉर्म्स? हाउ कैन वी कंपेयर एनवायरमेंटल लॉज इन देयर कंट्री इन आवर कंट्री? और हमारा एनवायरमेंटल लॉ हमारा है. सो बेसिकली दे वांट टू कैपिटलाइज ऑन दैट कि भाई ठीक है, आपका एनवायरमेंटल प्रोविजन फॉलो नहीं होता है. अब उसमें होता क्या है, दैट ट्रेड एग्रीमेंट्स बिकम कॉम्प्लेक्स, दे डोंट गेट साइंड, बिकॉज यूरोपियन यूनियन कहता है कि भाई हम जिस कंट्री के साथ ट्रेड यूनियन साइन करेंगे, वी वांट XYZ लॉज टू बी फॉलोड इन दोस कंट्री. तो हम कहते हैं भाई ये तो दैट इज आउटसाइड इट. अभी तक पिछले 30 साल से चाइना से आपके जो जितने भी ट्रेड हो रहे थे, वहां तो आपने ये बात नहीं कहा. एंड सडनली यू हैव बिकम अ होली काउ वेर यू वांट टू क्वेश्चन एवरीथिंग विच इज हैपनिंग इन इंडिया. Of course, we are committed on these areas, but we will do at our own pace and requirement. अब भारत में लेबर लॉ फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, हम कोशिश करते हैं, वी आर क्रिएटिंग अ सिस्टम, बट डोंट मेक अस, डोंट फोर्स अस टू follow it what you want to follow. We will do it at our own convenience, at our own way of doing that. तो होता क्या है कि ट्रेड एग्रीमेंट साइन ही नहीं होता है. सो राइट नाउ एज वी स्पीक वी आर नेगोशिएटिंग ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन, विद यूके. अब यूके जब यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, ब्रेक्जिट जब हुआ है 2016 ऑनवर्ड्स, तो अब जो है हम लोग यूके के साथ इंडिविजुअली ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं. अब यूके के साथ क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, दैट इज व्हाट हैव बीन डिस्कस इन दिस आर्टिकल. तो यूके छोटा सा कंट्री है रिलेटिवली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड पॉपुलेशन एंड मार्केट साइज ऑल्सो, बट इंडियन मार्केट से कुछ बेनिफिट मिलने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल जो इंडिया का लेबर, सो इफ आई सी द बेनिफिट्स of FTA with UK, the first benefit is labor intensive industries. कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, एग्रीकल्चर पे हम लोग थोड़ा वी आर वेरी कंजर्वेटिव. एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स तो होता है, बट देयर आर सर्टेन डिफाइंड एरियाज. हम एग्रीकल्चर मार्केट उनके लिए ओपन नहीं कर रहे हैं, सो दे डोंट वांट टू ओपन देयर मार्केट फॉर अस. जाता है, कुछ जाता है, बट इट इज नॉट एंटायरली ओपन लाइक अदर एरियाज, उसमें रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है. इंडिया का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स है वो ठीक है, बट इट इज नॉट वेरी डाइवर्सिफाइड. और दूसरा हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट इज हाई, स्पेशली इन द सीरियल्स. वीट हम एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, इंडिया का वीट महंगा है. ओके, क्वालिटी का भी कंसर्न है. जहां पर हमारा इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है वो हम करते हैं. अल्फांसो मैंगो बाहर नहीं मिलता है तो हम करते हैं, राइट? जो नहीं बाहर वर्ल्ड में मिलता है वो हम करते हैं, ठीक है? तो वो सो हमेशा रहेगा, वो कहीं भी एक नॉर्मल कंसर्न है, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन. खैर, सो अब यूके के बेनिफिट्स क्या हैं? यूके, तो इंडिया के बेनिफिट्स मेनली यही है. एंड व्हाट आर द यूकेस बेनिफिट? यूके को लगता है कि यूके कुछ एरियाज हैं, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, वाइन, so these are the industries which can benefit in their country. Okay, so basically the idea is FTAs क्या करता है? FTAs provide market access, market का access देता है, that is it. तो negotiate हो रहा है
यूके को लगता है कि इंडिया के लिए अभी भी ट्रेड डिस्पैरिटी है, उनके सॉरी टैरिफ डिस्पैरिटी है, उनके टैक्सेशन जो इंडिया पे लग रहे हैं वो कम है और हमारे टैक्सेशन जो उन पे लग रहे हैं वो ज़्यादा है। बिकॉज हम इन इंडस्ट्री में हम थोड़े प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में वी आर प्रोटेक्टिव बिकॉज वी हैव वेरी गुड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। वाइन इंडस्ट्री इज समथिंग विच इज इंडिया का भी एक बिगिनिंग स्टेज पर डेवलप हो रहा है, बट वी हैव टू ओपन द मार्केट इफ यू वांट टू डू ट्रेड एग्रीमेंट विद देम। करंटली एफटीएज आर नेगोशिएट विद यूके एंड यूरोपियन यूनियन, ये दो मेजर ग्रुप्स है जिनके साथ हम एफटीए नेगोशिएट कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हमारा चल रहा है। ओके, सो यू कैन राइट डाउन एफटीएज नेगोशिएटेड विद प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वो दे आर नॉट अग्रीइंग ऑन दैट एरिया। ठीक, सो यू गॉट अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफटीए कॉन्सेप्ट। इनका जो पॉइंट है वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट है आपका एफटीए में, आपने डिस्कस किया अभी? हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स। व्हाट इज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, एनी आइडिया? रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन मतलब कि टैक्स डेट, देखो लॉ जो होता है इट हैज टू टाइप्स ऑफ लॉ, प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव लॉ हो गया जो आई मेड अ लॉ टुडे बट वो पीछे बैकडेट से लगा दिया, राइट? सो एंड नॉर्मली लॉ जो होता है वो आज, अगर इफ वी आर इंप्लीमेंटिंग अ लॉ, अब वो आज से होना चाहिए, कल से होना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन। ये हम लोग इकोनॉमी में ज्यादा डिस्कस करेंगे, बट इफ यू सी इंडिया हैज पुट रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इन सर्टेन एरियाज। अ वेरी गुड एग्जांपल इज जो हमारा वोडाफोन केस हुआ था, केन एनर्जी का केस हुआ था, उसमें भारत ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगा दिया था। जैसे मान लीजिए आपने कोई फ्रॉड किया और आपने टैक्स पे नहीं किया, ठीक है, एंड टैक्स लॉज के तहत आपने उसका बेनिफिट ले लिया बिकॉज देयर आर लूप होल्स इन द टैक्स लॉ। अब सरकार को लगा अरे तुमने मुझे 10 रुपए का चूना लगा दिया टैक्स का, बिकॉज लॉ में कहीं गैप था, यू टुक एडवांटेज ऑफ दैट। गवर्नमेंट ने कहा अच्छा तुम्हें बताते हैं। उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने लॉ को अमेंड किया और पीछे से लगा दिया। दैट मीन्स जो आपने पीछे किया हुआ है वो भी उस एम्बिट में आ जाता है। नाउ दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। अ फॉरेन इन्वेस्टर आता है, कहता है अच्छा हम तो आपके जो करंट टैक्स लॉ है उसके बेसिस पे हमने सोचा था, या फिर हमने जब इन्वेस्टमेंट किया था तो आपका जो एक्स टैक्स लॉ था उसके बेसिस पे हमने इन्वेस्ट किया था। ना हाउ कैन यू इंपोज अ टैक्स बेस्ड ऑन प्रीवियस डेट, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट तो गलत है और देखा जाए तो एक्चुअली गलत है। हुआ ये था कि गवर्नमेंट ने अपने ईगो पे ले लिया था। इस पर मिस्टर जो हमारे प्रणब मुखर्जी थे, प्रणब दादा थे, वो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, एंड वोडाफोन केस में गवर्नमेंट की बहुत किरकिरी हुई थी। वोडाफोन केस की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वोडाफोन ने क्या किया, वोडाफोन इज अ एमएनसी और उन्होंने इंडिया में एसेट को सेल किया, लेकिन सेल का जो पूरा प्रोसेस है वो मॉरिशस में दिखा दिया, इंडिया के बाहर। अब आप कोई सेल जब करते हो, मान लो 10 रुपए का सामान बेचा आपने 20 रुपए में, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल गेन, यानी 10 रुपए का सामान 20 रुपए में बेचा तो 10 रुपए का बेनिफिट हुआ। ऑन दैट कैपिटल गेन यू हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 20% 30% जो भी उसका टैक्स होता है। तो गवर्नमेंट ने वोडाफोन ने क्या किया, असेट सेल का ओरिजिनल वैल्यू सामान इंडिया में है बट असेट सेल को आपने फॉरेन कंपनी में दिखा दिया, बिकॉज एक लीगल लूप होल है, और आपने फॉरेन कंपनी में एसेट सेल को दिखा दिया, वहां पे टैक्स कम लगता है और नहीं लगता है। अब गवर्नमेंट ने जब उनको नोटिस भेजा, अरे आपने एसेट सेल किया है, उन्होंने कहा अरे ये एसेट सेल का जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो तो मॉरिशस में है। तो कह रहे अरे कंपनी सेल तो मॉरिशस में हो रहा है बट इफेक्टिव बिजनेस तो इंडिया में है, तो हाउ कैन यू डू दैट? तो कहा नहीं आपका ये लॉ है, आपका ये है, ये देखो। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा, गवर्नमेंट ने लॉ चेंज किया और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगा दिया और फिर उनको नोटिस भेज दिया। अब वो नोटिस हजारों करोड़ का था विद पेनाल्टी। पेनाल्टी पे भी पेनाल्टी लगती है। अच्छा, सरकार का पैसा जो है आप मतलब भाग नहीं सकते हो सरकार से, तो बट दैट इज नॉट राइट अप्रोच, इट इज नॉट। ठीक है, अगर आपको गैप नजर आया यू कैन मेक अ लॉ एंड आगे से नहीं होगा। सो दैट इज, उससे इंडिया, अच्छा अब इंडिया ने कोई स्टैंड ले लिया तो गवर्नमेंट चेंज हुई, बट गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू स्टैंड ऑन द डिसीजन यू हैव टेकन। अब थोड़ी ना फ्लिप फ्लॉप करते रहेंगे।
तो गवर्नमेंट ने कोशिश किया, रास्ता निकाला, करते 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 फिर वो लोग इंटरनेशनल कोर्ट्स में चले गए, उनकी कंट्रीज ने पुश करना स्टार्ट किया। तो ये कहानी है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की। अभी का गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि चलो भाई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को हम मिल के बैठ के रिजॉल्व कर लेते हैं, टेक्निकली हम नहीं लगाएंगे। अब जो केस चल रहा है उसको कैसे निकाला जाए, बिकॉज अगर हमने उसको नहीं लगाया तो पब्लिक ओपिनियन कैसा होगा, अपोजिशन क्या करेगी। तो इट्स अ पॉलिटिकल इशू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द कंट्री वांट्स कि भाई हम इससे फ्री होना चाहते हैं और आपको टैक्स नहीं लगा रहे हैं, बट अपोजिशन उसका फायदा उठा लेगी ना। तो so there it's a very complex issue, but government in principle has said that we don't want to terrorize people। इसको टैक्स टेररिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए ओके, तो पहला सवाल ये है कि प्लीज आदित्य इज सेइंग प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन सीएसीए एंड सीएपीए। वेल टेक्निकल डिफरेंस तो बताना अभी संभव नहीं है, बट थोड़ा सा आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। सीएसीए का मतलब है नॉर्मली ट्रेड अग्रीमेंट्स आपका गुड्स एंड सर्विस में होता है, एंड द एरिया जो डिफाइंड होते हैं इट इज मोर ऑन द सेंस ऑफ कोऑपरेशन। पार्टनरशिप में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाते हैं, द एरिया ऑफ एंगेजमेंट इज मच हाइयर, इतना ही फर्क है बेटा। सो आप ये कह सकते हो कि ये जो एरिया है दिस इज मोर इंक्लूसिव एंड वाइडर। भाई पार्टनरशिप तब करते हो ना, कोऑपरेशन कब करते हो, जब लगता है कोऑपरेशन करना चाहिए। पार्टनरशिप कब करते हो, जब कोऑपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो लगता है अब पार्टनरशिप की बारी आ गई है, राइट। कोऑपरेशन तो हम सुबह शाम हमेशा ही करते हैं, बट पार्टनरशिप हमेशा नहीं करेंगे अनलेस अनटिल वी आर क्लियर। जैसे इंडिया का सीएपीए है, साउथ कोरिया के साथ है, जापान के साथ है। सो एंगेजमेंट जो है वो अलग लेवल पे, ट्रेड में है, इन्वेस्टमेंट में है, गुड्स है, सर्विसेज है, एवरीथिंग इज देयर। आप आसपास देखो, आपको साउथ कोरियन कंपनी और जापानीज कंपनी आपको इंडिया में ज्यादा दिखाई देगी। जस्ट लुक अराउंड योरसेल्फ इन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, आपको देखने को मिलेगा। वाई? बिकॉज वी हैव ओपन द मार्केट फॉर देम इंटायरली। ये अलग बात है कि वो इतने स्ट्रांग है कि हम उनको उनके मार्केट में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, दे वेरी स्ट्रांग इन देयर एरिया, ठीक है ना। चलिए, सो दैट कंप्लीट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पहला टॉपिक समझ में आया? डू आई मेक सेंस? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिनव पूछा है, नहीं सॉरी अभिषेक कह रहे हैं सर प्लीज री एक्सप्लेन ट्रांसपेरेंसी इन साइनिंग एफटीए। डेमोक्रेसी का पहला रूल क्या होता है? व्हाट इज द रूल ऑफ अ डेमोक्रेसी? व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के प्राइमरी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? पहला होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए। ऐसे करके आपने 7-8 और आपने प्रिंसिपल्स को डिसाइड कर लिया। फिर वही है, गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना, तो इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। नाउ व्हेन यू आर साइनिंग अग्रीमेंट विद अदर कंट्री, तो इनका लॉट ऑफ ट्रेड एक्सपर्ट्स हैव अ फीलिंग कि वो ट्रांसपेरेंसी जो अग्रीमेंट हो रहा है उसका प्रोसेस थोड़ा ओपन होना चाहिए। सॉरी, अग्रीमेंट जो चल रहा है उसका प्रोसेस थोड़ा ओपन होना चाहिए। होता क्या कि बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, चुपचाप बैठ के करते हैं। नेगोशिएशन इट्स अ चैलेंजिंग प्रोसेस, बिकॉज एवरी कंट्री विल पुश फॉर एफटीए इन देयर ओन इंटरेस्ट। भाई मैं एफटीए करूंगा तो मैं चाहूंगा मेरा इंटरेस्ट टेक केयर हो, वी हैव टू फाइंड अ मीटिंग ग्राउंड। तो उस प्रोसेस में जो नेगोशिएशंस होते हैं ऑफिशियल्स के, गवर्नमेंट के, ट्रेड एक्सपर्ट्स के, वो उसमें ट्रांसपेरेंसी का सवाल उठाया जाता है कभी कभी, कि भी आप चुपचाप करते हो, सडनली ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर देते हो, एंड सडनली जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है इंडिया में उनका शायद नुकसान हो जाता है। इफ द प्रोसेस इज मोर ओपन वी कैन चैलेंज इट। जैसे मान लीजिए मैं एक बिजनेस करता हूं और गवर्नमेंट ने उस एरिया में ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया, ना सडनली मार्केट ओपन हो गया और मैं फॉरेन कंपनी से कॉम्पीट नहीं कर पाता हूं। इफ आई नो दैट दिस इज बीइंग नेगोशिएटेड, मैं अपना प्रोटेस्ट पहले ही कर दूंगा। एम आई राइट? जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इंडिया का डेयरी सेक्टर। इंडिया का डेयरी सेक्टर इज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड, और हमारा, इवन दो वी आर द लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, बट हमारा सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड है। पर मिल्च या पर काउ जो हमारा जो मिल्क का पर कैपिटा है वो कम है, अनलाइक व्हेन वी कंपेयर विद न्यूजीलैंड और नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो जब हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हम इनको अपना मार्केट ओपन नहीं करने देते हैं। वाई? बिकॉज भी आपको दूध कितने का मिलता है? 50 रुपए लीटर, 50, 55, 60, डिपेंडिंग ऑन कौन सा दूध पी रहे हो। हमारे यहाँ ऐसे दूध है जो 200 लीटर भी आते हैं, भगवान जाने उससे क्या होता है, बट ठीक है। तो यू नो, सो वी हैव सच मिल्क्स। व्हाई? बिकॉज इंडियन सेक्टर बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है। अनऑर्गेनाइज्ड मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज हायर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिल्क कंपनी हूँ और मैं आई एम कलेक्टिंग मिल्क फ्रॉम
घर टू घर, घर घर जाके मिल्क कलेक्ट कर रहे हैं, इन्होंने 2 लीटर लिया, इनसे 3 लिया, इनसे 5 लिया, इन्होंने कहा आज एक ही हुआ है, चलो तो एक ही ले लिया तुमसे। अब दूसरा, वहां पे क्या होता है, वी हैव बिग फार्म्स जहाँ एक एक भैंस जो है वो 25-25 लीटर दूध देती है, इस तरह का उन्होंने फार्म क्रिएट कर रखा है। वी हैव डेयरी फार्म जहाँ पे एक एवरेज फार्म में जो काउज हैं वो 300, 350, 400 हैं। सो उनका स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज मच हाइयर, कॉस्ट कम हो जाता है। अगर हमने इंडियन मार्केट ओपन कर दिया तो पता चला कि आपको न्यूजीलैंड से खूब मिल्क जो है इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, हम तो कंज्यूमर है ना, हमको तो सस्ता मिल्क चाहिए, अच्छा मिल्क और सस्ता और अच्छा दोनों चाहिए। बट इंडियन प्लेयर कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे पता नहीं, ओपन होगा तो समझ में आएगा ना। इंडिया में 10 मिलियन पीपल आर, सॉरी 100 मिलियन पीपल आर एसोसिएटेड विद डेयरी सेक्टर। 10 करोड़ इंडियंस आर एसोसिएटेड विद डेयरी सेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो कुछ लोग कहते हैं अरे भाई 10 करोड़ के लिए 140 करोड़ की बलि क्यों चढ़ाते हो, डेयरी सेक्टर ओपन करो, ये लोग भी इनोवेट करेंगे, लेट द कंपटीशन बी ओपन। एक व्यू ये है। दूसरा व्यू ये है कि भाई नहीं, हमको अपने मिल्क प्रोड्यूसर्स को बचाना पड़ेगा, बट दैट विल कॉस्ट, दैट विल मेक यू बियर मोर कॉस्ट फॉर द सेम मिल्क, जो शायद यूके और यूएसए में या फिर इन अदर कंट्रीज आर चीपर। तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट को एक बैलेंसिंग रोल प्ले करना होना चाहिए। सो ट्रेड एग्रीमेंट में दे हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दिस। अब मान लो अगर हम नेगोशिएट कर रहे हैं, उन्होंने कहा अपना डेयरी सेक्टर ओपन करो, हमने कहा नहीं संभव है, हम बात ही नहीं शुरू करेंगे, नेगोशिएशन टेबल पे ये बात को हम हटा देते हैं। लोग कहते हैं नहीं नहीं, इसको बात करेंगे तभी हम बात आगे बढ़ाएंगे। सो ट्रेड एग्रीमेंट स्टेलमेट पे चला गया, नथिंग इज हैपनिंग, राइट? इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ गोइंग टू नेक्स्ट वन।